Hi, good evening to everyone. Am I audible to you guys? Just let me know in the chat box. Great. I'm audible to everyone. Great. Thanks. We have our speakers with us. We'll be starting in a fraction of just 2 minutes. Just getting everything sorted. Thank you guys for the chat box reply. I'll just I just ask our speakers to put on the videos, whereas all the participants please switch off the videos as well as mute your mics. Thank you. Are we good to go? Do we have team here with us? I can't hear you. Hi, Deepika. Now you can hear me. All the checks to be done once. I think there has to be an issue from your end because everybody else can hear me. Just check it once. Thank you. Great. You can hear me, right? Everybody. Okay. We are here. Okay, fine. So, good evening to one and all present here. Today we are here to have a webinar on how youth is so important in today's scenario for the social upliftment and the welfare of the society. Before I begin the webinar, I would like Mr. Srivastav, the co-founder of Vertex Law Chamber, to please say a few words and open the session for us. Over to you, sir. Hello and good afternoon, everyone. Am I audible? Hello? So the volume is a bit low. If you can just raise the volume. Hello. Yeah, I'm Yeah, audible now? works, sir. Yeah, hello and good afternoon, everyone. I, Sameer Srivastav, welcome you all into the today's session organized by the Vertex Law Chamber on the topic, the importance of the youth in today's scenario. So prior to initiate today's session, I would like to give a brief description about our firm, that is the Vertex Law Chamber. The Vertex Law Chamber is basically a Delhi-based law firm dealing in the matters related to civil, criminal, corporate matter. The Vertex Law Chamber is consisting of three partners, me, Sameer Srivastava, Mr. Dipanshu Gupta, and Mr. Nitin Dharmora. So without taking too much time, I would like to request our moderator, Ms. Muskan, to initiate today's session. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Thank you, everyone. So before I initiate the session, I would like everybody again, I'll just announcing to please do not switch off on the videos or unmute the mics. Now, with this session, I would like to welcome both our guests, Mr. Yashu Agarwal, who is the founder of Team We Care Trust, and also Ms. Kamini Ved, who is the field coordinator and a Dinar Award recipient, and who holds a very important position in Ladli Foundation Trust. I welcome you both. Before moving ahead, I will want to have a brief introduction about Kamini. So Kamini has been working for 3 years now in the field for women empowerment and upliftment. She has sensitized over 2.5 lakh women for personal hygiene and healthcare. She is also a Dinah Award recipient for making change in the society, being the young participant that she is. She also caters to individuals and is also part of Ladli Rakshak, which is a very big initiative of Ladli, where she has made around people know how it is important to be the protector and at the same time be somebody who needs to be taken care of. Uh, Kamini, I welcome you today. Before I proceed, Kamini, एक बात मेरे को आपसे सबसे पहले तो यही जानना है why do you think मतलब आप you I think you are also studying side by side, आप पढ़ भी रहे हैं, you have all going on, तो why do you think there is this need, जरूरत क्यों है आपकी और क्या नाम है आप जैसे लोगों की to be on the field at so मतलब age where people think पढ़ लेते हैं and उसके बाद शायद we will proceed number one.
I think somebody has switched on the mic. I will request you to please switch it off. Yeah. And also, I would also want to know आपका struggle, मतलब coming from a background, coming from your struggle, आपका कैसा struggle रहा है, आपने खुद के लिए क्या hardships देखी, and was being a girl even more tougher? Like, मतलब एक तो वो कैसा रहा? Over to you. So thank you so much for inviting me and स्टार्ट मैं करूंगी बिगनिंग से, जहां से मैंने स्टार्ट किया और क्यों मैंने स्टार्ट किया. इट्स रियली मैटर्स कि जब मैं आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, जब मैं सोशल वर्क में मैंने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिस एरिया से हम लोग आते हैं, अम्बेडकर नगर, वो एक ऐसा एरिया है जहां पर एक तो फीमेल्स को बेसिकली घर से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ से वहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जो इवन पेरेंट्स हैं, वो अपनी लड़कियों को बाहर निकालना अलाउ ही नहीं करते हैं. इवन वहाँ पे अगर हम कहें तो दिस इज अ वेरी बिग एरिया जहाँ पर बहुत ही हाई लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटी जो फीमेल्स हैं वो फेस करती है. सो दिस इज अ वेरी बिग इशू, और ये शायद मैंने भी अपने बचपन में सफर किया था जेंडर इनइक्वालिटी, जिसके लिए मैंने सोचा कि अगर आज मैंने एक्शन नहीं लिया तो पता नहीं मेरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, पीछे आने वाली जो पीढ़ियां हैं आगे की, शायद उनको भी सफर करना पड़ेगा. सो फॉर दिस आई टेक का एक्शन अगेंस्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. इसी के साथ इंक्लूडिंग विद इट कि जहां से हम आते हैं, उसके अलावा भी अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया में कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो रेशियो है वो डे इन डे आउट जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, वो भी मैंने देखा, अपने आसपास भी देखा, और रेगुलरली हम लोग देखते हैं कि डेली के हमारे पास केसेस आते जाते हैं. देखिए, एक रीजन था, काफी सारे रीजंस रहे. एक और रीजन था जिसमें मैं देखती हूँ चाइल्ड सेक्स अब्यूज. तो जिस एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे एक तो बच्चों को बहुत ही जल्दी एक तो नशे के एडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है. दूसरा कि वही नशे में काफी सारे जो इवन जो सीनियर जो मेल होते हैं, जो टीनेज जो मेल होते हैं, वो छोटे बच्चों को नशा करवा के सेक्सुअल अब्यूज भी करते हैं. तो बचपन से ही मैंने ये सारी चीजें देखी. डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, और चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो गया. तो इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियां इसका शिकार हो सकती है, और अगर मैंने आवाज उठा ली तो पता नहीं कितने लोग इतनी बड़ी घटनाओं के जो शिकार है वो होने से बच सकते हैं. सो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसको मैं फेस करते हुए खुद भी आई, जेंडर इनइक्वालिटी को देखते हुए या घर में फेस करते हुए. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि उन सभी चीजों को फेस करके आगे निकलना. उसमें काफी सारी, मतलब एक टाइम था ऐसा था कि जहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी छूट गया था, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्टिंग से ही फैमिली में डेवलप हो रही थी, जिस वजह से क्या था कि अगर मैं आगे एक्शन लेती तो मुझे पीछे खींचा जाता था. लेकिन मैंने उनको छोड़कर एक आगे निकली, एक्शन लिया. आई सेड कि ठीक है, मैं अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, इन स्पाइट ऑफ दैट आई टेक एक्शन अबाउट इट, कि मुझे आगे कुछ करना है, ताकि जो मेरे एरिया के फीमेल्स हैं जिनके साथ आज सिचुएशंस है, अगर मैं कुछ करती तो शायद वो भी कुछ मेरे को देखकर आगे बढ़ेंगे. एंड इट ऑल्सो हैपन राइट नाउ कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकालते थे, इवन एक्सेप्ट ऑफ मी फ्रॉम दैट एरिया. कॉलेज भेजना तो समझते ही नहीं थे पेरेंट्स. तो आज एक ऐसा टाइम है जस्ट बिकॉज ऑफ मी कि उस एरिया से काफी सारी लड़कियां आज कॉलेज जाती हैं, आफ्टर स्कूलिंग भी अपनी जो स्टडी है वो कॉलेज के साथ कॉलेज कर रही हैं. सो दिस इज कॉल अ वेरी बिग अचीवमेंट, जिसको शायद मैं फील कर सकती हूँ कि हाँ, मेरी वजह से काफी सारी जो फीमेल्स हैं वो आगे आई, उन्होंने अपना स्टडी स्टार्ट किया. दूसरा कि जो मैंने जर्नी रही सोशल वर्क की, आई स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड. आज से 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था. तो बहुत ही छोटे लेवल पे मैं उस टाइम पे करती थी. इंडिविजुअल हो गया, किसी को इंडिविजुअल हेल्प कर दिया, काउंसिल कर दिया. बट आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं उस बड़े लेवल पे नहीं कर पा रही जिस पे मुझे करना था. तो उस टाइम पे एक नई चीज मेरी लाइफ में आई, लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, जिससे मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला बहुत बड़े लेवल पे काम करने का. तो वहाँ की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2016 से, वहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वोकेशनल ट्रेनिंग देना अनप्रिविलेज्ड फीमेल्स को, क्योंकि उस एरिया में ऐसा था कि जो बच्चियां हैं, जो औरतें, उनकी स्टडी, बच्चियों की स्टडी 9th क्लास 10th क्लास के बाद छुड़वा दी जाती थी, और उसके बाद उनके पास करने के लिए जॉब का कोई ऑप्शन होता नहीं था, जिस वजह से वो मेड हो गया या फिर किसी के घर में कपड़े धोने का काम, मतलब काइंड ऑफ मेड वाला वो काम करते थे. तो हमने उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, जिसमें हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग देते थे, जिसके बिहाफ पे वो मेड के सिवा कहीं अच्छी, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री वगैरह का जॉब आज वो कर रही हैं. हमने ऐसे उस एरिया से अराउंड 16,000 फीमेल्स को ये मेड का काम छुड़वाकर उनको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री जैसी जॉब्स हमने दिलवाई हैं, जिनमें हमने उनको 16,000 फीमेल्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी.
उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि जब भी उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद हमने इसी के साथ स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुएशन को लेकर, कि जब हम थोड़ा सा और आगे निकले इस एरिया को छोड़ के आगे जब देखा, नॉट इन दिल्ली, इवन पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे थोड़ी बहुत जब हमने काम किया तो वहाँ पे हमें लगा कि जरूरत है कि मेंस्ट्रुएशन पर्सनल हाइजीन की। मतलब ऐसे एरिया पे हम लोग गए, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि 300 से ज्यादा स्लम्स में हम लोग काम कर चुके हैं, जहाँ पे फीमेल्स को यही नहीं पता कि पैड होता क्या है। जब हम उनको पैड देने जाते हैं या फिर हम उनको बताते हैं तो उनको जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि हाउ टू ईट दिस, इसको खाना कैसे है। तो एक इतना बड़ा बैकवर्ड एरिया है हमारी इंडिया के अंदर जो शायद अभी तक कोई जाकर देख नहीं पाया है। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन जो हमें और प्रवोक करती है कि हमें काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जितना इंडिया हम लोग देख रहे हैं कि एवरीवन इज सेइंग कि इंडिया इज डेवलपिंग, काफी स्पीडली डेवलप कर रहा है, बट अगर हम अंदर जाकर देखें तो वहाँ की हालात बहुत खराब है। स्लम्स में अगर हम जाके देखें कि वहाँ पे औरतों को नॉलेज ही नहीं है कि सैनिटरी पैड होता क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं। काफी सारी जो लेडीज हैं वो एक सैनिटरी पैड को पूरा पूरा दिन यूज करती है, एंड सम लेडीज आर देयर जो एक ही पैड को रीयूज करती है, जो एक सैनिटरी पैड्स आते हैं। तो इसीलिए हमने आगे प्रोग्रेस किया कि मेंस्ट्रुएशन पर्सनल हाइजीन पे काम करने का, और अभी तक हम लोग इंक्लूडिंग 10 स्टेट ऑफ इंडिया में काम कर चुकी हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा काफी सारे स्टेट हैं, एंड अपकमिंग इसमें आंध्र प्रदेश भी ज्वाइन होने वाला है। इसी के अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि एक और था कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज, जिसने मुझे बचपन में, जिसको मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे हैं जो इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने अपनी बचपन में देखे थे और जिनको डिसाइड किया था, उसी में से फिर मैंने डिसाइड किया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर भी काम करना है। तो इसी के साथ फिर नॉट इन दिल्ली, इवन जैसे कि बताया पंजाब के अंदर भी हमने चाइल्ड सेक्स अब्यूज के ऊपर काम किया है। मुस्कान मैम वाज आल्सो देयर विद अस, एंड चाइल्ड सेक्स पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, अभी तक हम लोग मोर देन 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कवर कर चुके हैं, जिनको हमने बताया कि गुड टच बैड टच क्या होता है। बिकॉज उनको बच्चों को तो क्या, इवन उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, एंड हाउ टू टीच टू देयर चिल्ड्रन कि बैड टच क्या है, किसको कहाँ पे टच करने देना है, किसको टच नहीं करने देना है। तो ये सारी सिचुएशंस हम लोगों ने जाके देखी, उसके बाद डिसाइड किया कि यस देयर इज नीड अ मोर वर्क्स लाइक दिस। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, मेंस्ट्रुएशन पर्सनल हाइजीन हो गया। इसके अलावा हमारा जो एक और कैंपेन चला था लाडली रक्षक, विच इज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, जो हम देखते हैं इंडिया में, इवन नॉट दिस टाइम फ्रॉम लास्ट, अगर हम 10 साल पीछे जाएं या 20 साल, 30 साल, 50 साल भी पीछे जाए, तो तभी के टाइम से जेंडर इनइक्वालिटी जो फीमेल फेस करती भी आ रही है। तो जिसकी वजह से अगर हम देखें, आज हमें विमेन एम्पावरमेंट के जो कैंपेन्स चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे बीज बोए गए थे या फिर इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी गई थी जिसकी वजह से आज हमें विमेन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है उसकी उठाने की जरूरत पड़ती है। आज हम क्यों मेल एम्पावरमेंट का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो पिछले टाइम से हम देखें विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, बिकॉज उस टाइम से लेकर आज तक भी जेंडर इनइक्वालिटी चलती आ रही है, इसलिए हमें आज भी जो है विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाना पड़ रहा है, कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हम अपने लेवल पे जो काम कर सकते हैं, उसमें मैंने अस्मिता थिएटर के साथ, दिल्ली पुलिस के एसोसिएशन के साथ, ऑल ओवर दिल्ली में, दिल्ली के साथ काफी सारे स्टेट इसमें इंक्लूड थे, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने 300 से ज्यादा स्ट्रीट प्ले किए, जिसमें हमने दिखाया जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, उनको हमने अवेयरनेस फैलाई। और जो क्राइम्स, उसमें हमने एक और चीज ऐड की थी, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो बढ़ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इसी के साथ अवेयरनेस फैलाई थी। तो उसकी रिड्यूसन के साथ उसमें हमने 3.3 मेल्स को जो है हमने सेंसिटाइज किया है, उनको अवेयर किया स्टॉप क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट रही। दूसरा मैं कहूंगी कि जिस एज में हम लोग हैं, लाइक जो यूथ है, यूथ इज अ वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ एनीबडी। यूथ की जो लाइफ होती है बहुत प्रीशियस होती है, अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो वो काफी बड़ा चेंज या बदलाव ला सकती है हमारी सोसाइटी के अंदर। बिकॉज अगर हम बात करते हैं, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू मी, इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनका मानना है, लाइक अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंदा जी की, जिनका बर्थडे भी हम एज एन यूथ नेशनल डे के बिहाफ पर मनाते हैं। सो एक इतनी बड़ी हस्ती जो खुद ही बिलीव करते थे कि यूथ इज हैविंग अ पावर टू चेंज द वर्ल्ड। सो व्हाई वी शुड नॉट, इवन वी शुड फॉलो दिस थिंग कि यस यूथ इज हैविंग अ पावर टू चेंज द वर्ल्ड। अगर हम बात, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, वायु, हवा, जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, एनर्जी होती है। वायु को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं वो बनता है युवा।
तो युवा के अंदर भी एक वायु जैसी शक्ति है, आई थिंक सो, जो बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली एक बदलाव ला सकती है सोसाइटी के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो यूथ होता है वो भविष्य, आने वाला भविष्य होता है, और अगर भविष्य की जो जड़ अगर पहले से ही मजबूत हो जाए तो भविष्य बहुत जल्दी उजागर होगा और बहुत स्पीडली वो फैलेगा। तो हमें जरूरत है युवा से वायु बनने की, और वो वायु बनने की जो स्ट्रेटेजी है, अगर हर एक वो युवा समझ गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज ये स्टेप अगर हमने युवा से वायु बनने का उठा लिया तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश के अंदर आ सकता है। और जो इवन मैं नहीं कहती कि सिर्फ डेवलपमेंट में, इवन क्राइम सेक्टर के अंदर भी जो युवा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर हर एक युवा ये समझ ले कि जागरूकता फैलाना या फिर जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, अगर उनको हटाने का अगर वो अपनी साइड से 1% भी ट्राई करते हैं, अगर वो केवल अवेयरनेस ही बढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आ सकता है। मैं बात करती हूँ, जैसे कि ये लगता होगा कि सिर्फ कहना आसान होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आज जैसे कि हम जानते हैं कि उधम सिंह, जो हमारे बहुत बड़े उधम सिंह, आज उनका पुण्यतिथि है, जिन्होंने एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हमारे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो एक बहुत बड़ा शख्सियत थी वो थी जनरल डायर, जिन्होंने बैसाखी के दिन काफी सारे लाखों लोगों को मारा था। तो उन लाखों लोगों की जो मौत का बदला लिया था वो उधम सिंह थे, जिन्होंने इंग्लैंड में जाके खुलेआम उनको शूट किया था, जनरल डायर को। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हम देख सकते हैं कि वो यूथ, वो भी एक युवा ही था, इवन ही वाज ओनली 19 years old जब उन्होंने इतना बड़ा रिवेंज लिया था देश के लिए। सो दिस इज कॉल्ड अ वेरी बिग एग्जांपल फॉर ऑल द यूथ, कि उस टाइम पे जब वो कुछ नहीं था, इतनी एजुकेशन नहीं थी यूथ के लिए, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ दैट they took a big action and they did a very big thing for the society and for nation also. Let's take an example of शहीद भगत सिंह। जब जिस टाइम पे लोगों के दिमाग में जो पब्लिक थी, जिनकी मेंटालिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जो आजादी तो उनके नाम के लिए है ही नहीं, उन्होंने खुद की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये एक्सेप्टेंस दिला दी थी कि यस हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जो लेकर आए वो लोगों की सोच में, क्योंकि सबसे मुश्किल जो टास्क होता है लोगों की सोच को बदलना, तो उन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में लोगों की सोच बदलने का एक जो जिम्मा उठाया था, और मरते मरते वो सोच को बदल कर गए थे, और लोगों के दिल में स्वराज का एक जो पॉइंट है वो उठा कर गए थे। तो उनकी ही फांसी के बाद ही लोगों के दिल में जो स्वतंत्रता की भावना जगी थी वो शायद वहीं से जगी थी, क्योंकि वो पहला स्वतंत्रता को लेकर जो संग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट हुआ था। वो 1931 के अंदर बहुत बड़ा 1931 में बहुत बड़ा बदलाव वो लेकर आए थे सोसाइटी में, जब एक एक बच्चे से बच्चा, छोटा इंसान भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो इतिहास से लेकर जब ये कहानियां चलती आ रही हैं, और अगर उनसे पहले भी अगर हम बात करें 1800 के टाइम की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए थे, और देश की जो शान शौकत उन्होंने बढ़ाई थी अमेरिका के अंदर जाकर, उससे तो हम सभी वाकिफ भी हैं कि उन्होंने इंडिया की कल्चर को जाकर अमेरिका में जिस तरीके से स्प्रेड किया था, और जिस तरीके से उन्होंने यूथ के अंदर अपना जो बिलीव दिखाया था, वो एक बड़ी चीज है। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि उनके टाइम से जो इतने रिस्पेक्टेबल पीपल है, इतने रिस्पेक्टेबल जो हस्ती है, उधम सिंह, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, तो अगर उन्हीं को फॉलो करते हुए अगर आज हम आगे बढ़ते हैं तो हम, मेरे हिसाब से यूथ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो बहुत जरूरी है। आई गेस अगर आज यूथ नहीं जगा तो आई डोंट नो कि आने वाले कितने समय तक जो देश है आज भी यहाँ से गुलाम रह सकता है, क्योंकि यहाँ से आजाद होने के लिए हमें युवा से वायु बनना पड़ेगा, और उस वायु की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो दुर्गंध यहाँ पे फैली हुई है, यूथ के अंदर, कि बस उनको फोन चलाना है या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, रहो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इसके अलावा आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ यूथ ऑफ इंडिया। हमारा सिर्फ एक यूथ है, वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उसके ऊपर भविष्य की जिम्मेदारी है, उसके कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी उनको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करती हूँ, आई एम ओनली 20 years old, ये जिम्मेदारी मैंने 5 साल पहले समझ ली थी, तो शायद आज इसलिए मेरे को सुनने इतने लोग आए हैं। और केवल यहाँ पर नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट शायद ये वर्ड्स आपको मोटिवेट करने में काम आए। तो आज मैं 20 साल की हूँ, 20 साल की उम्र में लंदन से मैंने अभी डायना अवार्ड रिसीव किया है, जो बहुत ही कम एज में सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए मिलता है। मैंने अपने 5 साल की जर्नी में अभी तक अप्रोक्स, अगर मैं ऑल ओवर अपने बेनिफिशियरी बताऊं तो मैं 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट कर चुकी हूँ, फीमेल्स को बेनिफिट कर चुकी हूँ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर अवेयरनेस फैला चुकी हूँ। तो अगर मैं छोटी 20 साल की उम्र में इतना काम कर सकती हूँ, तो अगर हम सभी बोलते हैं हम 5 उंगली हैं, अभी जितने भी युवा हैं वो बिखरे हुए हैं 5 उंगली की तरह, लेकिन अगर ये मुट्ठी बन के सब एक साथ आ जाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा।
बिल्कुल पूरे बिल्कुल साथियों के जो बिखरे हुए हैं वो सब इकट्ठा हो जाए और एक मुट्ठी की तरह काम करे, क्योंकि बंधी हुई मुट्ठी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ट्रू तो ट्रू ओके, सो बात। हाँ, बोलो बोलो कामनी, go ahead। आवाज शुड बीच में वो आई कंटिन्यू? या गो अहेड। सो वही मैं कहना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी सभी यूथ को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं या जो जुड़े हैं, वो अपने आगे लोगों को ये प्रमोट करें या फिर ये बताएं कि ये जो हम बिखरे हुए हैं, कोई या तो कोई फोन, कोई सोशल मीडिया के अंदर लगा है, तो कोई अपने शान शौकत के अंदर लगा हुआ है, कोई किसी और चीज में लगा हुआ है। तो जो बिखरे पड़े हैं उन सभी को इकट्ठा करके, अगर हम 5 उंगलियों को इकट्ठा करके अगर काम करेंगे तो शायद बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसकी जरूरत है हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी कोरोना का कोरोना जो महामारी फैली हुई है पूरे विश्व के अंदर, पूरा विश्व इसकी चपेट में आया हुआ है। तो अभी जब बहुत ही क्रूशियल टाइम इंडिया का स्टार्ट हुआ था 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर, उस टाइम पे भी हमने देखा था कि जो काफी सारे यूथ हैं वो उस लॉकडाउन के अंदर भी सपोर्ट करने नहीं आ रहे थे। कुछ लोग हैं जो देखने आ रहे थे कि बाहर लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि दे हैव टू हेल्प फॉर दोज पीपल जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो सब ना करने की बजाय सिर्फ जो सिस्टम चल रहा है उसको बिगाड़ने के लिए भी बाहर आ रहे हैं। तो दिस इज रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते सोसाइटी के लिए, सो एटलीस्ट उसको बिगाड़ो भी मत। पर हम तो बस यही प्रमोट करेंगे कि यही समझाएंगे या फिर यही बोलेंगे कि बिगाड़ना दूर की बात है, यू हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आई मीन सोसाइटी, वर्ल्ड तो चलो दूर की बात है, इफ यू चेंज योर सोसाइटी एंड योर फैमिली टू, सो दैट विल बी अ वेरी बिग चेंज फॉर द सोसाइटी। अगर आप अपने घर से शुरुआत करेंगे बदलाव की, जैसे कि आपकी सिस्टर है, हम इवन इंडियन फैमिली से अगर देखें तो हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक लड़की को जेंडर इनइक्वालिटी का फेस करना पड़ता है। तो अगर से अगर वो अपने घर से शुरुआत करते हैं अपने सिस्टर्स के साथ, तो आई थिंक सो कि जो जेंडर इक्वालिटी का जो भविष्य इतिहास जो चलता आ रहा है शायद वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अगर मैं बात करूं बिल्कुल पुरानों के टाइम की या फिर वेदों के टाइम की, उस टाइम पे जो पावरफुल्स थी वो मेन से ज्यादा फीमेल्स थी। लाइक जैसे कि बात करूं माता केकई की, जो राजा दशरथ को युद्ध में से बचाकर लाई थी। और अगर मैं बात करूं सावित्री जी की, जो अपने पति के जो प्राण है वो यमराज से मांगकर लेकर आ गई थी। तो उस टाइम पे जब देखें, जब फीमेल्स को हमेशा प्रोवोक किया जाता था या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, तो इस टाइप की घटनाएं हम लोगों को सुनने आती थी कि एक जो राजा थे जो इतना बड़ा साम्राज्य चलाया करते थे अयोध्या का, उसको बचाकर लाई थी माता केकई, सिर्फ इसलिए इस वजह से क्योंकि उस पुराणों वेदों के टाइम पे जेंडर इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जैसे ही जेंडर इनइक्वालिटी की चीज सामने आई, तभी से ही जो क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन है वो बढ़ने लग गए। और आज जो फीमेल्स को पकड़ के जो पीछे खींचा जाता है वो सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से। तो हम सब यूथ हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ हम सभी शुरुआत कर सकते हैं अपने घरों से, और जिस दिन हम सभी ने अपने घरों से स्टार्ट कर दी तो समाज में ऐसे मुद्दे उठने ही खत्म हो जाएंगे। सो थैंक, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देयर इज आई थिंक मुस्कान मैम, आई वांट टू शेयर वन स्लाइड विद यू, पीपीटी। कैन आई शेयर द स्क्रीन? Yes, sure. Kamini, go ahead. Okay, thank you. The host disable participant screen sharing. You have to, if that's the thing, let me wait. I will, I think I have to allow you to put something. I'll just do that. नहीं तो what we can do is you can mail me till the time हम यशु से बात करते हैं, उसके बाद हम वो शो कर देंगे। Yeah, for sure. Okay, ma'am. मेल कर दीजिए till that time, और तब तक हम यशु से बात कर लेते हैं। Okay, sure. सबसे बड़ी बात तो कामनी, I would want to say with it because I have also been there, and बहुत बड़ी बात, एक बहुत important बात है कि we need to, I also believe कि we need to be the change which we wish to see in the world. जो change हम देखना चाहते हैं हमें बनना पड़ेगा। हम बोल के, हम देख के, हम दिखा के नहीं कर सकते। we need to, हम अपने एंड में तो चेंज लाएं, अपनी तरफ से तो चेंज लाएं, तो वो चेंज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। राइटली सेड। सेकेंडली, जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जैसे कामनी ने कह दिया, शी सेड वेरी क्लियरली दैट इट्स ऑल अबाउट हियर, इट्स इवन टुडे हियर, इट्स टुमारो हियर, इट विल डे आफ्टर टुमारो विल आल्सो बी हियर। It's about this, it's about the thought that here we have to think of how we want to treat our women, how we want to take them ahead, and that's about it. If you change this, the whole thought process changes. Your equality and inequality ka jo thought process है, that removes automatically. And if you don't change this, then you can see it is societal, it's social, it's this, it's that, but all is here. If today I try to
make a change here. I'm trying to make a change at a better place to myself and probably doing good to the society, because one person changing, probably 4 people are prospects of getting the change done, because आपके आसपास at least 4 लोग रहते हैं जो आपके close surroundings हैं और जो आपसे influence कहीं ना कहीं जरूर होते हैं. So वो एक बात है ये. Coming back to that, for people, I would just say that Kamini had briefed us about how she had been a change maker from her own life, where she had seen gender inequality, and then she realized that it's important that she had to move ahead with it and do something to bring a change in this world, and that's how she did it. She brought changes when through personal hygiene, what you call counseling, through making people aware about the fact that child abuse is problematic and we need to end this, to making realize that how important is that the girls should come out and have their own views, and that's how it is. So I hope there is now that we are able to bring a better change after this, and somewhere down the line into somebody's mind, and that mind can change a lot more other things. I want to say one thing, मुस्कान मैम, कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी साइड से ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हम एक बड़े लेवल पे तो नहीं पर अपने लेवल पे जरूर एक बदलाव ला सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे कि हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं कि जिस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया था सती प्रथा को लेकर. सती सिस्टम वाज जब था अपनी हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, लेकिन उनके इस इनिशिएटिव से धीरे धीरे उन्होंने अपने लेवल पे खत्म किया और आज पूरे इंडिया के अंदर ये खत्म हुआ है. तो आपकी जो पहल है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो अभी नहीं तो देर में वो बदलाव जरूर लाके देगी, बिकॉज हमारा जो हार्ड वर्क है इट्स ऑलवेज पेज यू, वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाता. वेदर अगर आप वो स्टडी में करो, सोसाइटी को लेकर करो या फिर किसी भी चीज को लेकर करो, योर हार्ड वर्क विल ऑलवेज पेज यू. ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरी भी वही बात है कि हार्ड वर्क भी पे करता है, और जो चेंज आप बनना चाहते हैं अगर आप उसको अपने अंदर जरूर और अपने इर्द गिर्द करना लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने शुरू हो जाता है. थैंक यू सो मच कामनी. वी विल गेट बैक टू यू. नाउ वी हैव टू मूव टू यशु. तो पहले यशु की छोटी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं. तो यशु इज द फाउंडर ऑफ टीम वी केयर ट्रस्ट. दिस टीम is the team is full of people who probably are in the age group of 18, 19, 20 and not just ऑडियो का दिक्कत है. आप अभी ऑडियो म्यूट कर लीजिए. ऑडियो, हाँ बिल्कुल. Yashu is also somebody who has had seen his struggles from his own lifetime, where he had to leave his house and move with his family to Delhi and then do all the things which he could do to make his necessities meet. Then after that, but he has that realization from the very beginning, I believe, that how people are unable to not eat food and sleep, how people are starving and sleeping. So that whole idea changed, and that whole idea brought him to the fact that I need to found, or I need to make this team called Team We Care Trust. The whole team I know, and the whole team is full of young people. These people are exceptionally doing great in their lives, studying, making changes at ground level, number one, and also have other skills which they're developing day by day. So I welcome you, Yashu, सबसे पहले तो. And also I would सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि what made it, आपसे क्या हुआ कि you had to bring this change, कि हमें ऐसी टीम बनानी है और हम सबको ही बनानी है और हम सब दोस्त इकट्ठे होंगे और हम लोगों को ये चीजें करनी है. वो कैसे हुआ, नंबर वन. फिर उसके बाद आपका पर्सनली आपके दिमाग में क्या चलता था हर दिन जब उठना होता है, हर दिन जब कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली आप लोगों ने बहुत काम किया है फील्ड पे, तो उस टाइम पे हर दिन उठना और कहना कि अच्छा आई नीड टू ब्रिंग दिस चेंज, मुझे आज इसको खाना देना है तो आज मैं ये करने वाला हूँ, और उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो कैसे करूंगा. तो वो एक छोटी मतलब वो एक बात है. हाउ विल यू से, मतलब उसके बारे में मेरे को बताओ. सो ओवर टू यू यशु, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरे को अच्छा देने के लिए. आपकी ना आवाज वॉइस आ रहा है. आवाज आ रहा है? यस यस बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. You have a problem with the voice. हाँ, अब आप बोलिए प्लीज. आवाज आ रही है? बिल्कुल.
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम वीकेयर बनी कैसे, मतलब हमने स्टार्टिंग कैसे की। एक टाइम की बात है कि हमारा कोई फ्रेंड है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, सफदर हॉस्पिटल, तो उनको लेके जाना पड़ा सडनली। तो हॉस्पिटल के बाहर जब हमने देखा, मतलब पहले तो हॉस्पिटल के इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, जब हॉस्पिटल के बाहर हमने देखा कि 3-4 घंटे बाद हम जब वापस आ रहे हैं तो हमें कुछ मीन्स कुछ ऐसा लगा हमें कुछ खाना चाहिए, भूख लगने लगी। तो बाहर जब हम खाना खाने लगे तो हमने देखा कि काफी सारे लोग हैं जो कि वहां पे बैठे हुए हैं रोड पे, या फिर इलाज के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो फंस गए हैं। मतलब उनको खाने के लिए कुछ था नहीं, कोई खाना वहां पे बांट रहा है तो भग भाग के जा रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी को पीछे में जा रहे हैं और खाने के लिए दौड़ रहे हैं। मीन्स जब उनसे बात की, हमने सोचा कि इनसे बात करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो हमने जब उनसे बात की तो हमें पता लगा कि वो लोग आते, मतलब इलाज कराने आए हुए हैं। सपोज करो यूपी से कोई आया हुआ है इलाज कराने, और उसको लगता है कि इलाज करा के हम सडनली आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ पे इलाज कराने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कितना टाइम लग जाएगा, और वहाँ पे जब फंस जाते हैं 3-4 दिन या फिर कुछ दिन के लिए फंस जाते हैं, उनके पास पैसे होते हैं लिमिटेड, तो खाने वगैरह की उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसे सडनली मैंने देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, खाने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, उसके बाद उनको कपड़ों की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आए अपने, जब घर पे आए तो हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो हमने उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करने का स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने टी एंड कुछ स्नैक्स वगैरह लेके गए थे उनके लिए। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी, अलग सी एक मतलब एक उम्मीद सी थी जो हमें देख के जो भाग भाग के लोग आ रहे थे, कि जैसे कि उनके लिए मतलब नई जिंदगी मिल रही हो, मतलब खाना मिल गया तो उन्हें सब कुछ मिल गया, ऐसा भाग भाग के आ रहे थे। तो हमें वो करके अच्छा लगा। 2018 में सबसे पहले स्टार्ट किया था, धीरे धीरे खाना बांटना स्टार्ट किया। फिर कुछ टाइम बाद डिसमोटिवेशन आने लग गई, जैसे कि आपको पता है कि कुछ भी काम करते हैं डिसमोटिवेट करने वाले लोग कितने होते हैं। तो हमें एक नाम की जरूरत थी, कि नाम चाहिए, कि नाम करना है कि किस नाम से करें। तो हमने हमारा जो ट्यूशन है उसमें सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, हम सबने मिलकर स्टार्ट किया। तो एजुबेस अकेडमी उसके नाम से हमने स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये तो एक अपने अकेडमी के नाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी है कि अपना नाम करना चाहते हैं ट्यूशन का। तो हमने फिर ऐसी जो हमारे प्रेसिडेंट है काशिफ रजा, मैंने उनको बुलाया कि भाई देखो हम कर रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग सोचते हैं कि हम अपना नाम आगे करना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें कुछ अलग नाम हो, कुछ अलग नाम हो, और जिसमें कि लोगों को लगे कि हम सबके लिए करना चाहते हैं, ना कि अपने लिए। काफी भाई और हमने फिर बैठ के हमारी पूरी टीम बिठाई, हमने फिर एक नाम डिसाइड करने की सोचा, जिसमें हमने नाम रखा टीम वी केयर। क्या मेरे को सुन पा रहे हैं ना? आप जैसे चाहें आप ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं। हाँ जी। और उसके बाद हमने टीम वी केयर नाम स्टार्ट किया। सबसे उसके बाद हमने टीम वी के नाम रखा। उसके बाद हमने खाना वगैरह बांटना स्टार्ट किया। सडनली देन जब हम ये सब करने लग गए, मतलब 1 अक्टूबर 2019 को हमने नाम डिसाइड किया, एक नई शुरुआत करी टीम वी के नाम से। उसके बाद हमने खाना, फिर आपके साथ भी एजुकेशन के लिए काम किया, आपके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास, और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ठंड के अंदर, और लोगों के बीच में जाना, उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना, खाना देना, और उनको कुछ कुछ बातें बताना कि कैसे मतलब मोटिवेशन देना उनको कि लाइफ में मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, उनको काम के लिए, उनके काम मतलब काम देने के लिए बात की हमने। उसके बाद हमने कोविड-19 का टाइम आ गया। कोविड-19 के टाइम में हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। लगभग आज 128 दिन हो गए हम कंटिन्यू खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 लाख से प्लस हमने कोविड-19 में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, 20,000 से प्लस हमने फेस शील्ड, 1,000 से प्लस बच्चों को मिल्क अरेंज कराया, और 3,000 से प्लस सैनिटाइजर, 3,000 से प्लस राशन किट्स दी हमने। 2 लाख से प्लस आज तक हमने फूड के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स और योगार्ट। माइग्रेशन के लिए हमने काम किया। लगभग 109 माइग्रेशन को हमने डीएम सर से बात करी और उनके लिए टिकट्स अरेंज करा के उनको, मतलब जो हमारा एक मेन काम कोविड के अंदर ये था कि जो माइग्रेशन पैदल बच्चों को लेकर जा रहे हैं वो पैदल ना जाए, उनको मतलब हम अपनी गाड़ी से जाते थे, रोकते थे कि रोड पे जो पैदल जाते थे उनको रोकते थे कि आप मत जाओ, उनके लिए फिर बस अरेंज कराते थे, उनको डीएम से बात करके स्कूल खुलवा के स्कूल के अंदर रखते थे। उसके बाद उनके लिए टिकट अरेंज कराकर उनको उनके गांव तक भेजना था ट्रेन से, कैसे भी करके, जो 3 दिन तक, अगर 4 दिन तक भी वो स्कूल के अंदर रहते, जब तक उनकी नेक्स्ट ट्रेन नहीं होती थी, उसके लिए हम सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में खाना, रात को खाना, ये सब अरेंज कराते थे, ताकि उनके बच्चे पैदल ना जाए, वो परेशान ना हो। ये काम किया हमने कोविड-19। ये तो बात होगी काम की। अब उसके बाद ये सब जो आपने काम किया, तो स्पेसिफिकली आप एज अ पर्सन जिसने फाउंड किया है, अब फाउंडर होने के नाते आपको ये भी देखना होता है कि जो आपके जो टीममेट्स हैं वो भी सही से रहे, और साथ ही साथ कि उनको भी कोई दिक्कत ना आए, और जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो काम सही से पहुंचे, सही थॉट में हो,
कोई ये इसको गलत ना, जैसे आपने कहा कि लोग डिमोटिवेट करते हैं, लोगों के पास एक थॉट प्रोसेस रहता है कि हमें अपना नाम करना है, जो कि हमारा आइडिया नहीं है। दूसरी बात ये, और उसके बाद यू एज अ पर्सन, आपका एक एज है, आप भी, आई डोंट थिंक आपका एक, मतलब आप कितने 23 साल के होंगे, उससे ज्यादा तो आपकी उम्र नहीं है। और उसी उम्र में आपको अपना पढ़ाई भी देखना, अपने आप को प्रोफेशनली क्या मैं करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, वो भी एक थॉट रहता है हमेशा। तो वो कैसे, वो मतलब फिर क्या प्रायोरिटाइज हमेशा, जैसे सोशल वर्क किया, तो वो कैसे आपने कहा कि हाँ जी, मेरे को अब अगर चेंज चाहिए तो मुझे ये सब करना है और मैं इसको अपनी जिंदगी के साथ लेके चलूंगा, ये मेरे लाइफ का पार्ट हो गया है, अब इसको मैं रोक नहीं रहा हूँ, और मैं इस मतलब अपने साथ साथ जो मेरे को अपने लिए करना है वो मैं करता रहूंगा, लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें हैं उसको मैं रोकूंगा नहीं, आई विल कीप ऑन डूइंग इट। तो वो कैसे? नहीं, कभी कभी मेरे को फीलिंग आई कि नहीं यार, क्या मन नहीं करता था, मतलब एक अंदर से करता कि छोड़ो यार क्या करना। लेकिन फिर जब जाते थे लोगों के बीच में, उनकी दुआएं मिलती थी, उनके आशीर्वाद मिलते थे, जब वो उनको जो खुशी मिलती थी, उसे देख के हमारी जो मोटिवेशन है वो डबल हो जाती थी, कभी शांति भी जाता है। हमने जो पूरी टीम थी, हमने डिसाइड किया था कि भाई हमारी जो टीम है, इसमें से अगर कोई एक शांत होता है तो बाकी सब लोगों का काम होगा उसका मोटिवेट करना, ताकि हमारी टीम रुक ना सके, काम रुक ना सके, और उसको एक बार लेके जाना है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में हम अपना काम लेके जाते थे, लोग देखते, मतलब लोगों की खुशी देखते थे, तो हमें मोटिवेशन खुद ही मिल जाता था। उसके बाद लाइफ में मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मतलब पहले 10 साल की एज से ही मैं विलेज में रहता था। विलेज में कुछ सडनली ऐसी हमारे साथ घटना हुई कि हमें सबको, पूरी फैमिली को विलेज से अचानक दिल्ली की तरफ आना पड़ा। और जब दिल्ली में हमने रहना स्टार्ट किया, तो 10 साल की एज में दिल्ली में जब मैं आया तो नॉर्मली 5,000 रुपए लेकर हम आए थे पूरी फैमिली। हमने 5,000 रुपए से अपनी लाइफ 2006 में स्टार्ट की। रहने के लिए छत भी नहीं थी, और खाने के लिए खाना, मतलब बहुत सारे सब कुछ, पूरी जिंदगी शुरू से स्टार्टिंग की हमने। और उसके बाद जो अपने दिन याद किए हमने कि चलो भाई हमारे पास भी नहीं था और आज हमारे पास है, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए, हमें जितना हमसे हो रहा है उतना तो करना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, और ये तो आपका खुद का मतलब आपका खुद का स्ट्रगल भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेरे को दूसरों के लिए करना है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी रीस्टार्ट की, अपनी चीजें देखी हैं, लोगों को जहां तक मेरे पास सोर्सेज हैं मैं उसको पहुंचाऊं दूसरों तक, जो नहीं कर पा रहे, जो खा नहीं पा रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे। जैसे आपने कहा एजुकेशन पे काम किया, आपने खाने पे काम किया, आपने लोगों को माइग्रेंट्स को अपने घर पहुंचाया, इतना सारा काम, इसका रिसोर्स कैसे, मतलब क्या आप ही सब, आपकी एज ए टीम ही आप लोग अपने ही पैसे, अपने ही फंड्स, अपने ही काम करके उसी में वो कर रहे थे, या कोई था आपके साथ, कुछ कैसे लोग जुड़े, वो कैसे हुआ? जब इतना सारा काम इंसान को करना होता है, कहीं ना कहीं वो पीछे टेंशन भी तो चलती रहती है ना, कि अब ये कैसे करूंगा, इतना खाना, अब वो 100 से 200 लोग भी होंगे, 200 से 300 भी हुए होंगे, तो वो कैसे? जी, देखिए सबसे बड़ी जो पावर होती है एक टीम की, वो मतलब एक टीम लीडर की पावर होती है उसकी टीम। सबसे बड़ी पावर मेरी टीम थी। टीम ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा मोटिवेट किया, फिर जो भी हेल्प हो, जो भी काम हो, मतलब कभी टीम पीछे नहीं हटी। रात को 3-3 बजे तक, रात को 4-4 बजे तक घर पे आ रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि क्या लगे पड़े हो, मतलब तुम्हें कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना किए बिना उसमें लगे रहे हम। हमारी टीम, मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन जो टीम का होता है, मतलब एक टीम, हमारी टीम में सब यंगस्टर, मतलब सब यंग है और सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। जैसे हमारी प्रेसिडेंट है, वही जो है वो एक डांस अकेडमी सिखाता है, लेकिन उन्होंने भी एक अपना वो बनाया हुआ है कि ना भाई मेरे को हर मंथ अपनी इनकम से इतना % देना है, जो कि हमें अपने काम में करना है। या फिर चाहे मैं हूँ या फिर मेरी टीम के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट हो, जो भी है, अपना एक मोटिव बनाया हुआ है कि भाई इतना पैसा तो हमें इसके लिए निकालना ही निकालना है। और उसके बाद जो भी हमारे लिंक में होते हैं वो डोनेशन वगैरह देते हैं, तो उसी से करना ये हो पाता है। उसके बाद एक हमारी मनिका मैम, उन्होंने हमें इस कोविड में बहुत सपोर्ट किया है। रसोई और गिल्स फाउंडेशन, उन्होंने जितना हो सका हमें सपोर्ट किया है, उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। बहुत बढ़िया। तो वहीं पे बात आ जाती है ना, कि जब आपके पास टीम ही वैसी हो जो पूरी यंग है, दोज हू वांट टू ब्रिंग चेंज, तो वहां पे फिर वो एक थॉट प्रोसेस रहता है, सब अपनी इनकम छोड़ के और ये कर। अच्छा, उसी के साथ एक और क्वेश्चन मेरा राइज होता है, अब जिस एज ग्रुप में आप सब है, आई हैव मेट द टीम, मुझे सारी टीम के बारे में पता है, मुझे पता है आप लोग, मतलब आपका मेहनत का लेवल, रात के 3 बजे भी आप लोग काम करते हैं, और रात के 2 बजे भी अगर आपको मैं देख लूं तो लगेगा नहीं कि सुबह है या रात है, आप लोग एक ही दिन की उसी उसी एनर्जी से काम कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, आप लोग सब लोग यंग हैं, आप लोग सबका कुछ ना कुछ, आप जैसे कहा कि योर प्रेसिडेंट काशिफ, आई एम राइट, आई नो दैट ही हैज एन एकेडमी, और वो और रहने के बावजूद भी उनका एक अमाउंट है जो वो देते ही देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप एक अपने तरफ से करते हैं, तो कभी फैमिलीज की तरफ से आपने, जिसका कुछ फैमिलीज कहते थे इतनी लेट घर के, बट फैमिलीज ने कभी ये नहीं थॉट प्रोसेस आया कि बेटा ये तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने लिए क्या करोगे, तुम्हारा करियर क्या, तुम्हारा मतलब वो एक बर्डन नहीं रहता है दिमाग में?
वो कैसे वो कैसे रहा, वो दिमाग में क्या चलता था उस टाइम? ये देखिए, ये सिचुएशन तो हर फैमिली में कभी ना कभी क्रिएट होते रहती है। बिल्कुल। और तो क्या फैमिली फैमिली को हमेशा लगता है कि बच्चा क्या करेगा, कुछ कर भी रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन बिल्कुल फिर भी इस मामले में हमारी फैमिली हमें काफी सपोर्टिव मिली है। हमारी फैमिली हमें बोलती है कि कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। ये भी एक किस्मत वालों को ही मिलता है मौका कि कर रहे हो। सोशल वर्क करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इसीलिए फैमिली मतलब मोटिवेट करती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे भी हमारे घर वाले बोलते थे कहाँ जा रहे हो, कुछ हो गया तो क्या करोगे? तो हम बोलते थे क्या हो गया तो हो गया, जवान है, 14 दिन क्वारंटाइन तो रहना पड़ेगा, कौन सा कुछ मर जाएंगे, मतलब ऐसे करके कुछ बोलते थे। तो घर वाले बोलते थे चलो कोई नहीं भाई, तुम्हें कौन समझाए। तो हाँ वही है ये कि मतलब हाँ वो वही मैं वही जानना चाह रही हूँ कि वो जो थॉट प्रोसेस है वो तभी आ सकता है जब आप एक यंग एज में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपको चेंज लाना है। जैसे कामनी ने भी बोला, आपका भी वही थॉट प्रोसेस है कि हमें चेंज लाना है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं निकलेगा, मैं निकलूंगा तो शायद 4 लोग मेरे आगे से और निकलेंगे। और जहां तक मैं जानती हूँ, कामनी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द सेम एरिया जहाँ से आप लोगों का एरिया नियर बाय ही रह रहा है। तो वो एक जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को वहां से मूव करके बोलना कि वी कैन डू बेटर, वहां से कुछ लोगों का निकल के चीजों को बदलना, वो खुद में भी आई थिंक उस एरिया को लेकर भी आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि लोगों को ये दिमाग उनका चेंज करना कि यहाँ चेंजेस आ सकते हैं, वी कैन डू बेटर, हम लोग बेटर हैं, हमारे यहाँ पे पढ़ाना लिखाना चीजें करना इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो तुम लोगों की दोनों की बातों से मैं वो निकाल सकती हूँ। अच्छा, ऑल्सो यशु, मेरे को ये भी पता है कि आप लोगों की पूरी जो टीम है वो सब मतलब बहुत ही यंग सब लोग हैं। तो क्या मतलब एक जैसे आपका एक थॉट प्रोसेस रहा, मुझे और भी सब कुछ जो भी सबका पता है, तो देर वॉज नॉट एनी टाइम कोई ऐसा एक कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी केस स्टडी जो तुमने फील्ड पे देखे हो जो आप शेयर करना चाहोगे किसी भी लेडी या किसी के भी साथ, किसी भी फैमिली के साथ, जब आप लोग हॉस्पिटल्स में खाना बांट रहे थे, कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को हिट कर गई और जब घर वापस आए तो कहा कि भाई ये या तो ये काम तो नहीं रुक सकता, मतलब कुछ भी होता है ना, कभी भी थोड़ी सी भी चीज होती है। मुझे याद है मैं और कामनी जब काम करते हैं, कामनी आए, मेरे पास अपनी अलग स्टोरीज है, कामनी के पास अपनी, हमारे पास खुद एक कुछ कॉमन स्टोरीज भी है जो हम बांटते हैं वापस, और हम सोचते हैं कि अरे हमने आज क्या देख लिया, और आज अब इसके बाद तो वी हैव टू डू इवन बेटर, हम रुक नहीं सकते हैं। तो वैसी वैसी आप लोगों से। जी जी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हुई है, लेकिन मैं हाल फिलहाल की अभी कोरोना टाइम की बताता हूँ। कोरोना के टाइम में आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन लग चुका था, सबका काम बंद था। वैसे ही एक अम्मा थी, मतलब बहुत ज्यादा लेडी, मतलब बहुत ज्यादा एज थी उनकी, 80+। तो वो एक रिक्शे पे, जब भी हम जाते थे रिक्शे पे बैठे थे। मोस्टली हम कागजी में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, नेहरू प्लेस नहीं जा पाते थे, अम्मा रहते थे नेहरू प्लेस के अंदर। तो एक दिन हम क्या करा, हम नेहरू प्लेस से निकले तो अम्मा को एक दिन खाना देकर चले गए और कालकाजी में डिस्ट्रीब्यूशन करने चले गए। उसके नेक्स्ट डे हम कालकाजी डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, बट नेहरू प्लेस नहीं गए। जब थर्ड डे था, थर्ड डे हम खाना देने गए, अम्मा के पास गए तो अम्मा रोने लग गई। अच्छा। हाँ जी, अम्मा रोने लग गई। हमने बोला अम्मा जी ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला कि बेटा मैंने कल आपका बहुत वेट किया, आप नहीं आए। मैंने मतलब अम्मा, उन्होंने बोला कि खाने के लिए मुझे लगा आप रोज आओगे, आप कल नहीं आए, आज आए हो। वो रोने लग गई। मैंने अम्मा मतलब ऐसा क्यों? उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि पास में ही नेहरू प्लेस की मार्केट में मैं पन्नी और गत्ते वगैरह वो जो है वो उठा के अपना जो लाइफ थी वो मतलब जीती थी, अपनी लाइफ जीती थी। और उसके बाद उन्होंने अभी काम बंद है, गत्ते पन्नी कुछ है नहीं, तो लोगों के ऊपर डिपेंड है, कोई खाना देता है तो खा लेते हैं वरना नहीं खा पाते। तो ये हमें बड़ा मतलब हर्ट कर, अंदर से मतलब एकदम दिल को लग गई ये बात कि यार ये कैसे हुआ। फिर अम्मा को हमने खाना दिया, अम्मा को हमने बोला कि अम्मा ठीक है, अब हम आपके लिए रोज खाना लेके आएंगे। फिर भी हम रोज खाना लेके आते थे। सडनली क्या होता था कि कभी कभी हम भूल जाते थे, क्योंकि खाना इतने 5-5 लोगों का भी हमने एक दिन में खाना बांटा, तो इतना थक भी जाते थे और कभी कभी भूल जाते थे अम्मा को। कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी फैमिली से, अपने घर से मम्मी को बोला कि खाना बना दो, अम्मा का खाना आज भूल गया है, तो बना के उनको दे के आए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि अम्मा को ऐसा खाना देना प्रॉब्लम है, मतलब रोज रोज खाना कभी नहीं देने गए तो अम्मा तो भूखी रह जाएंगी, हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो हम उनको क्या 2 टाइम खाना देते थे, लेकिन हमने उनको खाना तो देते रहे, लेकिन हमने अम्मा को एक टाइम राशन भी दिया कि अम्मा अगर किसी दिन हम ना आए तो आप ये खाना बना के खा लेना। उसके बाद आज तक भी उनको खाना देके आ रहे हैं, और लगभग 5 बार हम राशन दे चुके हैं उनको कि अम्मा आप मतलब डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हम ना आए तो भी आप हमारा एक लिमिटेड टाइम तक वेट करना, उसके बाद खाना खा लेना। तो ये जो है हमें एक बहुत मोटिवेशन मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमसे उम्मीद रखते थे, कालगजी वगैरह, हम कहीं भी जाते थे तो हमारी गाड़ी जैसे आती थी, हमारी गाड़ी का नाम एक फूड बैन पड़ गया था, फूड कार। हमारी कार जाती थी और लोग हमारी गाड़ी की तरफ भाग के आने लग जाते थे। तो लगता था कि सच में लोगों को जरूरत है और हमसे उम्मीद है। तो इसीलिए हमें वो मोटिवेशन मिलता था कि हमें मोटिवेशन मिलती थी कि हमें करना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात बोली। उसी के साथ मैं कामनी को भी बोलना चाहूंगी, कामनी यू ऑल्सो शेयर कोई एक एक्सपीरियंस जो तुझे लगता है कि यू केम बैक
एंड उस दिन या तो रात को पूरा दिन, या तो क्योंकि मुझे याद है बहुत टाइम हमने इकट्ठे बैठ के भी सोचा है, और बहुत टाइम मेरा भी ऐसा रहा है कि मैं वापस गई हूँ या मैं ऑफिस आई हूँ वापस, और मैंने कहा है कि ये क्या, मतलब बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात होती है कि हम लोग, मेरे को हमेशा जब भी मैं वापस आती थी ऑफिस, मुझे एक ही चीज समझ आती थी कि आपके पास बहुत प्रिविलेज है, मेरे पास या हम लोग जो भी हम आज बैठे हैं, कि उतनी प्रिविलेज है कि हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वहां के लिए शायद हम ही एक प्रेरणा का स्रोत और होप है, और अगर हम नहीं पहुंचते या हम नहीं बोलेंगे तो शायद उनका होप ही खत्म हो जाएगा, और शायद उनका विश्वास उठ जाए लोगों से, सोसाइटी से, अच्छी अच्छी चीजों से। तो कामनी, कोई एक स्टोरी, ओवर टू यू। स्टोरी है एक, यहाँ वसंतपुर स्लम की है। जब हम उस टाइम पे कैंप किया करते थे वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर हम लोग वहाँ काम कर रहे थे काफी टाइम से। तो एक बार मैं स्लम्स में विजिट करने के लिए गई, तो एक बच्ची मुझे वहाँ पे मिली और वो बहुत स्टिंग कर रही थी, उसमें से बहुत स्मेल आ रही थी, जैसे 6-7 महीने से नहा ही ना हो। तो मैंने उसको पूछा कि आप मतलब स्मेल क्यों कर रहे हो, इतना नहाते नहीं हो, पानी नहीं आता यहाँ पे? तो पानी तो आ रहा था वहां पे, तो वो भाग गई हाथ छुड़ाकर। तो जैसे उसके पीछे पीछे करके हम गए, तो उसके मदर तक हम लोग गए, वहां पे उसकी मम्मी से मैंने बात की कि मतलब बच्चों को आप इतनी साफ सफाई से क्यों नहीं रखते हो, ऐसे तो उनको कोई प्रॉब्लम या बीमारी लग सकती है। तो शी सेड कि उनकी जो फैमिली है वो अपने अपने उस बेटी को, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके फादर उसको अटैम्प ना करें या उसका कोई गलत यूज ना करें, इसलिए वो उसको नहाने नहीं देती, ताकि वो स्मेल करे और उसके जो फादर है या फिर जो चाचा है, जो ताऊ है, जो भी मेल है फैमिली में, वो उसको टच ना करे या फिर उसके पास ना आए। सो दिस इज अ वेरी शॉकेबल थिंग। मैंने पूछा उनसे कि आप अभी क्यों उनको, या स्टार्टिंग से ही? तो उन्होंने बताया कि ऐसे जो उसके चाचा हैं वो बहुत बार उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज कर चुके हैं, बट फैमिली की रिस्पेक्ट ना जाए या फिर फैमिली पे कोई दाग ना लगे, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उनका जो सोल्यूशन निकला वो ये था कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही मतलब नहाने से बंद कर दिया, उसको बाहर जाने से बंद कर दिया, ताकि वो स्टिंग करे, स्मेल करे और कोई उसको अटैक ना कर पाए, फिर कोई उसके पास ना आ पाए। तो दिस इज अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन व्हिच आई सॉ इन बसंत कुंज। बट उसके बाद मैंने उसकी मदर को काउंसलिंग किया, उसकी बेटी को काउंसलिंग किया, देन शी टेक एक्शन अगेंस्ट ऑफ हिम। और उसके बाद फिर उसने अपनी बेटी को सजा देने की बजाय उनको सजा देने का सोचा, क्योंकि जो क्राइम कर रहे थे सजा उनको तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जो क्राइम सहन कर रही थी उसको दिन प्रतिदिन जो कठिन से कठिन सजाएं झेलनी पड़ रही थी, ये उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन था, जो हम लोगों ने वहां पे उनको काउंसलिंग किया और एक्शन लेने की उनको समझाया। एंड आफ्टर दैट शी टुक आल्सो एक्शन, एंड फिर उसने अपनी बेटी को वहां से सेपरेट किया, उन्होंने अलग से रहना स्टार्ट किया, और उस जो प्रॉब्लम्स उनके साथ होती आ रही थी काफी टाइम से, उसके लिए आवाज उठाई। सो दिस इज वेरी बिग वर्स एग्जाम्पल जो मैंने देखा वहां पे। और उसके बाद काफी टाइम तक मुझे नींद नहीं आई कि क्या देखकर हम लोग वहां पर आए। एक और मैं बताऊंगी ड्यूरिंग कोविड-19 का, कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे, मैं हो गई या यशु हो गए, इसके साथ काफी सारी एनजीओ है जो ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, बना हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बट एक बहुत बड़ी चीज थी कि जो न्यू बॉर्न बेबी जो हुए थे, जो हम देखते हैं लेडीज का, अगर हम स्लम्स में देखें, जो लेडीज है उनको खुद को खाना तो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो फीड नहीं कर पाती थी अपनी बेबीज को, क्योंकि उनका दूध भी नहीं आता था, क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं है, मील नहीं मिल पाता था। तो लेकिन जो ड्राई राशन देकर गए, जो खाना देकर गए, उनसे उनका पेट तो भर गया। लेकिन जब मैं वहां की स्लम में गई और वहां की लेडीज को देखा, तो उनकी आंखों में एक अलग सी झिझक थी, जिसको लेकर वो बहुत परेशान थी कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाए। पैसे नहीं थे तो बाहर से दूध लाकर भी वो पिला नहीं सकती थी, और खुद उनका आता नहीं था। तो पेरेंट अगर खाना हो लेकिन फिर भी वो ना होने के बराबर होता है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव उठाया लाडली फाउंडेशन के साथ, कि हमने ड्राई राशन के साथ लैक्टोजन मिल्क पाउडर स्टार्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा जो लोगों के अंदर एक मतलब आशा बढ़ी कि हाँ उनके बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स और उनकी जो माताएं जो होती हैं बच्चों की, वो बहुत परेशान रहती थी कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं, जिस वजह से उनके पास जो प्रॉपर मील होता था वो उसको भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर काफी परेशान रहती थी। तो ये एक था जो हमने कोरोना के अंदर देखा, कि फिर हमने न्यू बॉर्न बेबीज के लिए लैक्टोजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट किया। सो 2 स्टोरीज थी, एक हाल फिलहाल की और एक कोरोना से पहले की, जिन्होंने मुझे बहुत इफेक्ट किया, क्योंकि इतने डीप तक कोई नहीं सोच पाता कि बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो क्या खाएंगे या फिर उनके लिए क्या होगा। सो दीज 2 स्टोरीज वर देयर जो मैंने फेस की थी। हाँ जी, 2 स्टोरीज वर देयर। I was listening that. हाँ, तो हाँ मैंने वही, मेरे को ये बात पता है बहुत क्लियरली, मैं 1-2 कैंप्स में रही हूँ, नो डाउट कोविड में थ्रू आउट आप थे वहाँ पे।
हैविंग सेड दैट, एक और चीज जो मैं चाहती थी तुम दोनों ही एड्रेस करो, मतलब आप लोग दोनों एज एन young youth population and also somebody who have been very major part of big NGOs और एक ऐसी NGOs जो as a group changes ला रही हैं. Having said that, मेरे को ये जानना था कि यू बीइंग आप एक काम कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरी विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, और देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन जो यशु चला रहे हैं जिसपे हम लोग जनरल बात करते हैं, आप एजुकेशन की भी बात करते हो, आप फूड की भी बात करते हो, आप कहते हो कि हम लोगों को क्वालिटी लाइफ भी देनी चाहिए, आप कहते हो कि देर कोई भी इंसान भूखा सोना नहीं चाहिए, ठीक है. अब इन दैट केस आपसे पहले कामनी, पहले यू फिर यशु के पास जाएंगे कि जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और जब ये सब बातें होती है तो कितना रोल आपको देखो सिर्फ लगता है कि ओनली यूथ हैज टू प्ले इन इट. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग ऑब्वियसली मैं तुम हमसे ऊपर की एज ग्रुप हमसे नीचे अगर एज ग्रुप सब लोगों को काम करना है, लेकिन व्हाट इज दैट रोल जो सिर्फ आप हमारा जो ग्रुप है अगर वो प्ले कर दे तो वो बहुत मेजर चेंज ले आएगा. ओवर टू यू काम. फीमेल अगर मैं देखूं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट का मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का जो कैंपेन है, जो मुद्दा है, हमें क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स के साथ क्राइम्स होते हुए आए हैं. और आज अगर हम रेशो देखिए क्राइम्स का, कि जो जितने रेप केसेस आज हम देख रहे हैं फीमेल्स के साथ, तो फीमेल्स के साथ तो सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं. ऑब्वियसली उसमें मैक्सिमम यंग बॉयज हम लोग देखते हैं फीमेल्स के साथ. दूसरा एक तो रहा हमारा क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन को लेकर जो मैक्सिमम, जिसमें हम देख रहे हैं कि यंग बॉयज बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन में, वेदर वो 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 20 एंड 21 ईयर्स के जो यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरा कि जैसे कि मैं बात करती हूँ जेंडर इनइक्वालिटी की, तो जेंडर इनइक्वालिटी में जो जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब फैमिलीज में जब हम जैसे कि इस एज में हम हैं, अगर आज हम देखते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसी जेंडर इनइक्वालिटी हो तो इस टाइम पे हम आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक यंग एज में हमें ये सोचने, एक हमारा जो मस्तिष्क है वो थोड़ा इतना परिपक्व हो चुका होता है कि हम इस लेवल की बातों को सोच सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं. लेकिन अगर इस एज में आने के बाद भी, यंग होने के बाद भी, और एक थोड़ा, क्योंकि अगर हम यंग है तो थोड़ी सी एजुकेशन भी है, और इन सारी चीजें होने के बाद भी अगर आप ये सारी चीजें फेस कर रहे हो तो ये हमारी गलती है. सो बीइंग अ यूथ, जब हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है इस चीज सोचने के लिए, तो उस टाइम पे ये एक्शन लेने के लिए भी उतना ही परिपक्व हो जाता है, उतना ही स्ट्रांग हो जाता है. तो मेरा मानना है कि अगर यूथ ने इस एज में आने के बाद अगर स्टार्ट कर इक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाना, अपनी फैमिली से, अपने घर से शुरुआत करके, और दूसरा कि जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हो रहा है जिसमें यूथ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है. इवन अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लेट्स विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एमएमएस, अगर किसी लड़की का एमएमएस वायरल हो जाता है या फिर कोई कर देता है, उसको सबसे ज्यादा स्प्रेड करने वाले कौन होते हैं? यूथ ही होते हैं. तो ऐसी चीजों को, जैसे कि अभी हमने देखा था कि उस पे काफी सारे जो हमने देखा था एमएमएस वायरल के ऊपर, एक एमएमएस वायरल हुआ था, उसको सबसे ज्यादा जो वायरल करने के लिए प्रोवोक किया था, उसमें मैक्सिमम जो नंबर थे वो यूथ के थे. तो आज जो हर क्राइम्स के अगर हम देखें कि नंबर ऑफ यूथ है वो हाई जा रहा है, अगर उस नंबर ऑफ यूथ को अगर हम वहां से लो करके अगर एम्पावरमेंट्स के अंदर लगा दे तो शायद ये कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है. और चेंज जो है, बदलाव जो है, वो केवल यूथ ही ला सकता है, क्योंकि यूथ के अंदर वो एनर्जी होती है, उनका एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं रेदर देन अदर, जैसे कि जो एडल्सन्स हो गए और जो हमसे छोटे हो गए, उन सभी से जो एनर्जी पावर होती है वो यूथ में ज्यादा होती है. सो आई गेस किसी भी चीज को लेकर, किसी भी जहां पर भी जो यूथ है पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्राइम्स में, वहां से अगर उनको हटा दिया जाए और वो एम्पावरमेंट्स के अंदर काम करने लग जाए, तो आई होप सो कि सिर्फ केवल यूथ ही रोल प्ले कर सकता है इन सभी चीजों में, बिकॉज वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सोचने की, समझने की, जो उनकी मस्तिष्क की जो परिपक्वता है वो हो चुकी होती है. और तो आई गेस दिस इज द बेस्ट वे कि व्हेन यूथ स्टार्ट टू डू समथिंग फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर द सोसाइटी, सो इट टेक अ वेरी बिग चेंज इन द सोसाइटी. यशु, अब यही बात सेम मैंने जैसे बोला कि यू हैव टू टेक दैट, कि आप लोग कैसे एक यूथ बन के, आपका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेरेटिव टू वो लोग जो लोग हैं इन्वॉल्व. ऑब्वियसली सब चेंज करना चाहते हैं, सब एक चेंज लाना चाहते हैं, बट योर रोल इज फार मोर इम्पोर्टेंट, या आप लोग जब कुछ चेंज लाते हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, वो कैसे? तो ओवर टू यू यशु. सबसे पहले जैसे कामनी जी ने बोला, यूथ एक एनर्जेटिक, मतलब सबसे अलग एनर्जी यूथ के अंदर जो होती है, मतलब यूथ इज ए पिलर. मेरा मानना ऐसा कि यूथ एक पिलर है
कि जिसका बेस मतलब जो अपना बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है। यूथ मतलब जब हमने स्टार्ट किया, मतलब हम सारे यूथ थे जब हमने काम स्टार्ट किया, तो कुछ लोग हमसे जुड़ने लगे, बड़ी एज के लोग, और उन्होंने क्या करा, मतलब पॉलिटिशियन लोग थे, पॉलिटिक्स खेल के चले गए, मतलब हमारे साथ आए। उन्होंने देखा कि जब ये बच्चे काम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, वो हमसे जुड़ गए और एक यूथ का मतलब देख के मतलब अपना काम स्टार्ट कर, जिससे पता लगा कि यूथ एक बहुत बड़ी पावर है, यूथ कुछ भी कर सकती है। मतलब एक यूथ जो है एक एज ऐसी है कि एक यूथ की एक एज ऐसी होती है, एक ऐसे समाज में हाल फिलहाल में जो चल रहा होता है सब पता होता है, नए नए आइडिया उसके पास होते हैं, उन आइडिया के साथ काम कर सकता है, एक एनर्जेटिक तरीके से काम कर सकता है। यही बस। हाँ, तो थैंक यू सो मच मतलब तुम लोगों फॉर मेकिंग दिस हैपन फॉर ऑल ऑफ अस। हम अगर तुम लोग नहीं मतलब यू हैव बीन आप कहते हैं ना एक इमेज ऑफ द यूथ ऑफ टुडे, कैसा होना चाहिए और कैसा है, और कहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव वाइब रहती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन सी दैट यस दिस काइंड ऑफ यूथ इज देयर or this kind of people are making change. One. Number two, I would like 5-10 minutes if anybody on the webinar in the participants have anything to discuss, anything to put forward for our speakers for the session in general. आप बोल सकते हैं if you want कि वो किसी particular चीज के बारे में बात करें, जवाब दें, कुछ भी जैसे भी, तो you guys are open for that. नहीं तो फिर we will conclude this session with lots of good things, positive vibes, और शायद I hope कि इसके बाद we are able to bring better change at least in thought processes, जैसे कामिनी ने कहा या आयुष्टू ने भी कहा, और जो मैं बिलीव भी करती हूँ कि if we need to bring the change we wish to see the world in the world, we need to be the change. So yes, anybody from the participants, कुछ question answers तो नहीं, मतलब मैं कहना चाहूंगी कुछ भी, anything you want to put across to our speakers या कैसे भी, we would love to have that. You're welcome, Advocate Vikas. Anybody? 5 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर we will conclude this session. Okay, in this case, if we have no questions left, एक तो दो चीज I would like to conclude एक बारी तो सबसे पहले तो ये कहकर कि थैंक यू कामिनी और थैंक यू यशु कि यू गाइज मेड अ पॉइंट कि आप लोग अपनी तो बात क्लियरली और एक रिप्रेजेंटेशन दे पाए यूथ को बहुत क्लियर एस्पेक्ट में कि हम क्या चाहते हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि आप वो सब ना करें जो एक जनरल यूथ आजकल का करना चाहता है। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू एंजॉय लाइफ, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू be the part of the world, not to enjoy society. We are just saying all of this should be accompanied with social responsibility. All of this should be accompanied with honesty and care and thoughtful towards the nation, towards us. All of this should be accompanied with the fact that yes, we need to bring change and we will bring change from our end. और अभी आजकल के टाइम पे तो मुझे लगता है कोई घर बैठे और कोई एक भी चेंज कर रहा है तो वो चेंज बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि eventually you are making the change for this world. So yes, we can do that. What can be the role of youth in combating COVID-19? Mr. Bhandari is asking that कि youth का रोल क्या रह सकता है कि COVID-19 को कॉम्बैक्ट करने में, कम करने में और उसको रोकने में, या कह दो उसका एक इसका जो एक प्रभाव है उसको थोड़ा कम करने में। तो कामनी, इफ यू वांट टू आंसर दैट। इसमें हम लोग जैसे कि यूथ है, अगर मैं बताऊं कि जैसे कि अभी हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ पर, हम सभी यूथ हैं और ऑब्वियसली हम लोग वेल एजुकेटेड है राइट नाउ। अभी जितने भी हम यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हम अपने लेवल पे काफी सारी अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखें कि जैसे जैसे लॉकडाउन कम होता जा रहा है, लोग उतने ही इनरिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर अगर हम अवेयरनेस फैला सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक बहुत बड़ा बदलाव भी होगा इस कोविड-19 के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से लोग इनरिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके माइंड से जो लगता है कि लॉकडाउन जैसे हटा कोरोना भी चला गया, तो अगर हम अपने लेवल पे अगर हम अपने लेवल पे इसको काउंसलिंग कर सके, लोगों को अवेयरनेस कर सके, क्योंकि हम सभी आज सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम सभी के 200, 300, 500 फॉलोअर्स हैं या फिर जो फ्रेंड्स हैं, अगर हम उन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं उनको स्प्रेड करने का, बिकॉज आज सबसे ज्यादा यूथ अवेलेबल वो सोशल मीडिया पर है। अगर सोशल मीडिया पे ही हमने ज्यादा ही नहीं, अगर हमने 2-3 करोड़ लोगों को भी अगर हमने अपने सोशल मीडिया से अगर अवेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं
उन 4 लोगों से वो आगे 4 लोगों को बताएंगे और आगे 4 वर्ष से शायद धीरे धीरे अवेयरनेस सारी जगह में फैल जाएगी. तो यूथ कैन प्ले अ बिग रोल इन कोविड-19 टू. जिस तरीके से हम सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, अगर उसका हम सही इस्तेमाल कर ले, केवल टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, तो शायद हम एक बहुत बड़ा बदलाव या फिर कोविड-19 के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ ला सकते हैं. क्योंकि लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो कोरोना है पीक पे पहुंचने वाला है, और जैसे ही वो पीक पे पहुंचेगा तो अंजाम हम सभी जानते हैं. तो इसको पीक पे पहुंचने से हम लोग बचा सकते हैं. हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं इस चीज को लेकर एज मच एज वी कैन. सो मे बी इट कैन टेक अ गुड change in the society to end for the COVID-19, and it can be a big relief for the COVID-19 for all people. Great. Having said that, thank you Kamini for that answer. उसी के साथ क्या नाम है, विनय जी पूछ रहे हैं how youth can shape the India and the dream of आत्मनिर्भर. आत्मनिर्भर सबसे पहले तो तभी होगा जब यूथ अपनी जिम्मेदारी को समझेगा. मैं वही कहने वाली थी. जिम्मेदारी समझ ली, जिस दिन उन्होंने खुद को भारत का भविष्य समझ लिया और आप उस भविष्य की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया, तो शायद भारत अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा. वो मैं आई वुड ऐड टू दैट. कामनी जो कहने लगी थी, मेरा वही बिल्कुल मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन पढ़ते ही ये बात आई थी कि हम लोग, मैंने अभी भी, कामनी ने बोला, यशु ने भी बोला, हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ, मैं ट्राई करूँ कि मैं एक वो सिटीजन रहूं जो अबाइड करे अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को, अपनी चीजों को, और एक साथ ही साथ मेक श्योर करे कि मैं एक पॉजिटिव चेंज ला रही हूँ, तो मैं आत्मनिर्भर हूँ. अब उस आत्मनिर्भरता को अगर हमें पहुंचाना है लोगों तक, तो वो हम ऐसे ही पहुंचा सकते हैं जब हम खुद आत्मनिर्भर हो, और वो आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब हम सोशली रिस्पॉन्सिबल है. तो वी हैव टू रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्फ एंड टुवर्ड्स us as a youth, as a young individual, और वो ऑटोमेटिकली आई थिंक वी आर डूइंग आवर पार्ट. उतना सही है, और उतने से भी बहुत कुछ हो जाएगा. ठीक है ना. और रही बात, आई वुड, बिफोर आई कंक्लूड द सेशन, आई वुड लाइक मिस्टर नितिन दामोरा, द co-founder of Vertex Law Chamber, to conclude the session, and then we can find the final words and end this meet today. Over to you, sir. Hello everyone. So we are concluding this webinar session here. I, Nitin Darmoda, on behalf of the Vertex Law Chambers, would like to extend a very hearty and sincere thanks to our respected speakers, Ms. Kamini Vaid and Mr. Yashu Agrawal, who shared their knowledge and experience with us and took out their valuable time from the busy schedule. I would also like to extend a special thanks to Ms. Muskan for moderating this event and giving us her precious time. I would like to thank all the participants and the viewers of this event. And at last, a big thanks to our team of the Vertex Law Chambers. Thank you everyone for your contributions. And participants are requested to kindly fill the feedback form. The link is shared in the chat box. Thank you and have a nice evening. Thank you, Mr. Nitin. Thank you, everybody. For all those who had a problem with the language, we will share a brief of the webinar once we are sharing the pictures and everything. So I think you can have that access through our page, through the Vertex Law Chambers page. And thank you for all the guidance and all the beautiful and positive experiences you had given us. I hope we bring a better change, and we are able to change at least 2, 3, 4 minds today and make them think of, are we socially responsible, or are we Atmanirbhar towards ourselves? On that note, I would end this session. Thank you, everybody. Thank you, Vertex Law Chamber. Thank you to our speakers, Mr. Yashu Agarwal and Ms. Kamini Vaid. It was great talking to you guys. Thank you, everybody. Thank you. Take care. Stay safe.
Without